वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से न निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। కనుక సత్సంగ్కి రండి అంటే టైం లేదండి, మా దగ్గర సమయం లేదు సత్సంగ్ రావడానికి. కొన్ని ఇంట్లో కూర్చుని భగవన్నామం ధ్యానం చేయండి అంటే టైం లేదు, సమయం లేదు, బరువులు, బాధ్యతలు, ఇంట్లో పనులు. మరి ఎప్పుడు చేస్తారని అడుగుతున్నారు గురువు గారు. మనలో చాలా మందికి ఒక అపోహ ఉంది, ఏంటి భగవన్నామం చెయ్యాలి అంటే తర్వాత చూద్దాంలేండి, 60 ఏళ్ళు 61 ఏళ్ళు వచ్చాక ఖాళీ సమయం ఉన్నప్పుడు చూసుకోవచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు పనికిమాల పనులు ఇవన్నీ కూడా చాలా మందికి 99% మందికి అదే, మాకు ఖాళీ లేదు, సమయం లేదు. ఈ ధ్యానాలు సత్సంగాలు ఇవన్నీ పని లేనటువంటి వాళ్ళు, ఖాళీగా ఉండేవాళ్ళు చేసే పని అంటూ ఉంటారు. గురుదేవులు ఏం చెప్తున్నారు,
వయసులో ఉండగా ఇప్పుడే చేయలేని పని 60 ఏళ్ళు 60 ఏళ్ళు వచ్చాక చిచ్చినా సరే జరగదు, అసంభవం చెప్తున్నారు. వయసు అయ్యాక ఏం చెప్తారు తెలుసా మీ ఇంట్లో పిల్లలు? ఎందుకు ప్రతి దాంట్లోనూ కూడా మీరు కల చేసుకుంటున్నారు? మాల పుచ్చుకుని రామకృష్ణ అని మోపొచ్చు కదా అంటారు. అక్కడ దాకా తెచ్చుకోవడం ఎందుకు అంటున్నారు గురుదేవులు. ఆ సమయంలో జపమాల పుచ్చుకుని చేద్దామన్నా సరే మీ మనసు భగవన్నామంపై లగ్నం కాదు అని చెప్తున్నారు. రెండోది, చాలా మంది ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి భక్తి మార్గంలోకి రమ్మంటే కొంతమంది భయపడతారు. ఎందుకని? అవి వదిలేయాలి, ఇవి వదిలేయాలి, అవి తినకూడదు, ఇవి తాకూడదు, అక్కడికి వెళ్ళకూడదు, ఇక్కడికి వెళ్ళకూడదు. మన మార్గంలో అవేమీ లేవని చెప్తున్నారు గురువు గారు. ఇందులో విడిచిపెట్టవలసినటువంటి వస్తువు గాని విషయం గాని ఏదీ లేదు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా భగవన్నామం పరమాత్మ నామం అనే కొత్త వస్తువుని మీ దైనందిన జీవితంలో కలుపుకుంటున్నారు, ఏది కూడా వదిలేట్లేదు అని చెప్తున్నారు. నిజంగా మన దగ్గర సమయం లేనట్లయితే గృహస్థాశ్రమంలో ఉంటున్నటువంటి జనక మహారాజు, ఆయన సాక్షాత్తు చక్రవర్తి రాజు, ఆయన దగ్గర సామంత రాజులు కూడా ఉండేవారు. జనక మహారాజు బ్రహ్మజ్ఞానీయుడు. మరి ఆయనతో పోల్చుకుంటే మనకు ఉన్నటువంటి బరువు బాధ్యతలు చాలా చాలా ఎంత గొప్ప స్థితికి వెళ్తామంటే భగవన్నామం అనే జ్యోతి మన మనసులో స్థిరంగా కదలాడకుండా వెలుగుతూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే రామనామం ఉంటుందో, ఎక్కడైతే భగవన్నామం ఉంటుందో అక్కడ అజ్ఞానాంధకారం అనే చీకటి తొలగిపోతుంది అని చెప్తున్నారు గురుదేవులు. ఇందాక చూడండి, కరెంట్ పోయింది, అంత చీకటి మయం, ఎవరెక్కడ కూర్చున్నామో తెలియదు. కరెంట్ రాగానే వెలుతురు వచ్చింది. సరిగ్గా ఇదే విధంగా మన మనస్సులో హృదయంలో జన్మ జన్మల నుంచి సంస్కారాలు ఉన్నాయి. గూడు కట్టుకుపోయినటువంటి సంస్కారాలు, పాపకర్మలు, సంచిత కర్మలు, వీటన్నిటి వల్ల మనం అజ్ఞానంలో ఉన్నాం. మన మనస్సు హృదయం ఎప్పుడైతే సద్గురు ద్వారా బీజమంత్రం నామం భగవన్నామం అనే జ్యోతి గురుదేవులు వారి యొక్క ఆత్మిక శక్తి ప్రసార కిరణాన్ని ఆ జ్యోతిని మన హృదయంలో వెలిగించారో, భగవన్నామం అనే జ్యోతిని, అప్పటి వరకు జన్మ జన్మల నుంచి గూడు కట్టుకున్న అంధకారం అంతా కూడా తొలగిపోతుంది. ఎంత గొప్పది అంటే ఈ రామనామం అనే జ్యోతి మనల్నే కాదు, సాధన అభ్యాసం చేయగా మన సంపర్కంలోనికి మన సాంగత్యంలోనికి వచ్చిన వాళ్ళకు కూడా జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది అని చెప్తున్నారు గురువు గారు. अब पूजा करें कैसे? सबसे जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि संसार में नगर में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। एक साकार पूज्य पुजारी है, दूसरे निराकार। और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, नई कोई बात नहीं। इनमें आपस में वाद विवाद भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, दोनों बातें होती है और दोनों कायम है आज तक। तो अब क्या है, लेकिन सब होते ऐसे दोनों कायम है। बात ऐसी है कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है, किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को सूरत से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है। ये साकार पूजा है, साकार रूप। मंदिर में जितनी मूर्तियां हैं सब साकार रूप पूजा वालों के लिए। साकार रूप, शिव, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण, 33 करोड़ देवी देवता है जो हमारे मंदिरों के अंदर लगे हुए हैं। वो सब साकार, जो उनको मानने वाले हैं सब साकार पूजा को मानने वाले, साकार पुजारी। दूसरे निराकार पुजारी है, ठीक है। साकार पुजारी का जो सबसे बड़ा काम है वो एक इष्ट का निश्चित करना, अनेक नहीं, एक। या तो आप राम को मानिए, या शिव को मानिए, या हनुमान जी को मानिए, या किसी को जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है उसको मानिए, ठीक है। उसी को आराधिए, उसी की पूजा करिए, उसी का ध्यान करिए, उसी का सारा काम करना है, किसी दूसरे का नहीं करना। अगर कोई दूसरा व्रत भी आप करते हो तो उसका फल अपने इष्टदेव से मांगिए कि हमारा ये काम अटका हुआ है, ठीक है, हमें जो हमने व्रत किया, जो किया, परमात्मा उसका फल हमको अपने देव के माध्यम से मिले, किसी दूसरे से नहीं। एक जब पूजा का असली मकसद हो क्या है, एक इसका निश्चित करना जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाइए, उसी को इष्ट माने। भावना है तो भगवान है, भावना नहीं है तो भगवान नहीं है। सारा काम जो है भावना का है। तो रोज रोज बदलेंगे तो विशेष लाभ नहीं होगा। पूजा का जो मकसद है वो क्या है,
पूजा का मकसद सिर्फ गाना बजाना नहीं है। पूजा का मकसद है चित्त की एकाग्रता प्राप्त करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ध्यान करना। और वो कराते शुरू ध्यान से, हमने एक स्टेज पहले छोड़ दी, वो नहीं कराते, दूसरी स्टेज पर आ गए, मन से ध्यान करना। ठीक है, पूजा कैसे करें? कुशाय कंबल का आसन हो, धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से बैठिए, सुख आसन से, जिस आसन पर बैठे इसका सुख आसन बोल, सुख आसन से बैठे। आसन भी बहुत सारे, पर सबसे बढ़िया आसन सुख आसन है। अगर सुख आसन में आराम नहीं मिलता तो स्टूल पे बैठ जाइए बड़े प्यार से, पड़ौती लगाकर, और उसके बाद ये कल्पना करें बाई थॉट, ख्याल से, कि हमारा इष्ट साई शरीर हमारे सामने विद्यमान है। सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई, क्या वो मूर्त में नहीं है। जब तक आपने चूज किया तब तक मूर्त में था, शक्ल में था, फोटो में था। जब आपने कर लिया तो उनकी पवित्र फोटो अपने घर के अंदर लगाइए। लगाने के बाद उनको देखिए, पूजा के मंदिर में धूप दीप जला के आंख मीचिए, उनकी मूर्त अपने सामने बनाइए कि वो सह शरीर हमारे सामने विद्यमान है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला, जैसे पेंटर बनाता है। अगर पेंटर को कहा जाए कि फोटो बना दो तो बड़े प्यार से फोटो बना देगा, बनेगी, टेढ़ी मेढ़ी बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भाव है, बनाते हैं। उसके बाद विद्यमान है, कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो आपके बहिर्मुखी विचार जो है दुनिया के, उनसे मन हटकर परमात्मा की तरफ लगेगा। तो इतने प्यार से करना है कि जब भी आप पूजा करते आधा घंटा, तब तक कोई दूसरा विचार और ख्याल नहीं आना चाहिए। ये खास बात है कि कोई दूसरा विचार न आए तो उनको दबाएंगे नहीं, उनको हटा देंगे कि भाई बाद में बात करेंगे तुम्हारी। जैसे बच्चा पूजा के टाइम पर बैठे हुए हो, बच्चा आके कहता है मम्मा हमको ये चाहिए, तो कहते ना कि बेटा रुक जा 10 मिनट। ऐसे ही अपने मन को बनाना है कि 10 मिनट और विचार, भाई हटो, अभी हम पूजा कर रहे हैं। इस तरीके से बार बार मन को बहलाएंगे और पूजा में लगाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका परमात्मा आपके सामने बैठा होगा। और जब परमात्मा सामने बैठा होगा, अच्छी स्टेज आपकी होगी, आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत से भाई लोगों के आंसू में आंसू आने लगते हैं, कहते हैं कि भैया जी आपने जो तरीका बताया उस समय हनुमान जी के दर्शन हो गए, हमको कृष्ण भगवान के दर्शन हो गए। तो अगर वाकई में आपको दर्शन करना है तो आपको सत्संग में जाएंगे, वह ग्रुप मेडिटेशन करेंगे, अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे, तो आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होंगे। रोज दर्शन करिए, गुरु का दर्शन एक बार, वो भी 1 साल में, और अपने इष्ट का दर्शन रोज करिए बड़े प्यार से बैठ के। अपने इष्ट का दर्शन रोज आंख नीचिए, उनका दर्शन कीजिए, और जो आपको सोल्यूशन लेना है उनसे बात करिए, आपको बताएंगे। सपने में बात करेंगे, सामने बैठ के बात करेंगे, ध्यान में बात करेंगे, ये सारी चीजें होती है, प्रैक्टिकल तरीका है। तो इसके बाद मूर्ति में जब आए, ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ज्ञान में लौटेंगे और बड़ी सुंदर अनुभूति होगी। लोगों के आंखों से आंसू निकलते हैं जब उन्होंने अपने इष्ट देव के दर्शन करते हैं। दूसरे भाई है जब निराकार भगवान के उपासक है, परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वो नाम जाप करे बड़े प्यार से, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, सबके लिए रास्ता बताया, सबके लिए रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि ये रास्ता आध्यात्मिक रास्ता है। इसमें सारे बराबर है। जो अनुभव हमको होते हैं वो दूसरे लोगों को भी होते हैं, तीसरे लोगों को भी होते हैं, सबको होते हैं, सारे के सारे। तो करना क्या है कि आसन वही है जो आपकी आत्मा को, सबसे बड़ी बात यह कि वो चीज जो आपकी आत्मा को अच्छी लगती है, घर में भी वही करते हैं, जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे उसको चुनिए, और किसी को नहीं। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो आत्मा है, आप अपनी आत्मा को लेकर, आप खुद पंडित है पूजा के लिए, और बड़े आराम से आप उस चीज को कर सकते हैं। तो जो हमारी हार्ट बीट है, दिल की धड़कन नहीं सुनाई देती, डॉक्टर कहता है दिल चल रहा है,
हमको सुनाई नहीं देता, ठीक है, और बराबर चल रहा है। तो उस दुखतुकी में जो आवाज आती है, अगर आप आंख मीच के बैठेंगे तो आपको आवाज आएगी दुख दुख दुख। उसके अंदर से ओम नाम निकल रहा है, या जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। सुनिए बैठ के, और ये महसूस कीजिए कि वाइब्रेट करता है पूरे शरीर के अंदर, फैलता है, उसका अनुभव करिए। ये गूंगे का गुण है, जिसको अनुभव होता है वही बता सकता है, दूसरा बता ही नहीं सकता। जो नाम चुना है, हृदय निरंतर ओम ओम कर रहा है, जवान नहीं कह रही। और जब तक ऐसा ना हो, शुरू में दिक्कत होती है। गुरु शुरू में जब चलना शुरू किया तब भी दिक्कत थी, जब खाना शुरू किया तब भी हमारे साथ दिक्कत थी। बचपन में हमारी माँ ने जबरदस्ती खिलाया है ना। मैंने अपने पोते को 4 साल पपीता आम तक के खिलाया, अपने मही से खाया उसने, यहाँ आम खाया, और उसके बाद जब उसको पता लगा कि आम नहीं पपीता, तो खाना बंद कर दिया। तो जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किया है, बहुत अच्छा किया है, हमें संस्कार दिए हैं बहुत अच्छे, उन संस्कारों को आगे बढ़ाइए और बढ़ा के इस रास्ते में चलिए। तो क्या है कि और धीरे धीरे ऐसी अवस्था आती है, आपको बहुत स्पष्ट सुनाई देने लगता है, ऐसी हालत पैदा होती है। क्या हालत पैदा होगी? जैसे ही आपका मन आपके इसके चरणों में लगना शुरू होगा, आपको सुषुप्ति की अवस्था आएगी, नींद आती है बैठ के। दूसरे भाई लोग कहते हैं कि अरे ये तो सो रहा है आपके यहाँ पर। हम कहते हैं कि 20 गोली खिलाने के बाद भी कोई ऐसा सुला दे, जो हमारे सत्संग में आदमी आके सोता है, और उस सोने में इतनी एनर्जी मिलती है कि 18 घंटे काम बड़े आराम से कर सकते हैं उस नींद को लेके। नींद कब आती है? नींद जब आएगी जब मन के विचार खत्म हो जाएंगे, तब नींद आती है। रात को बिस्तर में पड़े होते हैं, जब तक दुनियावी विचार चलते होते हैं तब तक नींद नहीं आती। जहां दुनियावी विचार हल्के हुए, खत्म नहीं हुए, हल्के हुए, फौरन नींद पड़ जाती है। ऐसे ही पूजा में जब हम ध्यान करते हैं, जब तक धीरे धीरे नाम चलता रहता तब तक नींद नहीं आती। जहां ध्यान हल्का हुआ, विचार खत्म हुए, फौरन नींद आ जाती है। इसको बोलते हैं योग निद्रा। योग के साथ नींद लेना। इस योग निद्रा में इतनी एनर्जी होती है कि आप 2 घंटे सोने के बाद 24 घंटे आप काम कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये है योग निद्रा की बात जो मैंने आपको बताई। उसके बाद एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। इन संतों ने पूजा का तरीका बताया, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। और सत्संग में इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है। सत्संग में यह प्रैक्टिकल होता है इसका कि जाइए, आराम से बैठिए, आंख मीचिए और सोइए, और कुछ नहीं करते। तो क्या है, धीरे धीरे सुषुप्ति की अवस्था आती है, और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हमें आत्मा का अनुभव होने लगा कि हम है कौन। अभी पता नहीं हमको कौन है, न राम है न रहीम है, हम और कुछ है। जानिए कि हम है कौन। हमारा नाम न सीता है न गीता है, हम तो और कोई है। ये तो हमारे पेरेंट्स ने हमको नाम दिया, गीता सीता। भैया जी आपने नाम दिया है ना। असली क्या है वो आप जानने की कोशिश करिए। जब वो जानेंगे तो आप असली परमात्मा के नाम को जानेंगे, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। और उसके लिए हमको मेहनत करनी है कि हमको पता लगे कि हमारा उससे कनेक्शन क्या है। और जब पता लगेगा, जब साधना में जाएंगे। साधना में जाने के लिए क्या 3 चीजें बहुत जरूरी है। अपने कान बंद करो। पहला क्या करना है, कान बंद करिए, आंख बंद करिए, ठीक है, मुंह बंद करिए, ना किसी की सुनिए ना किसी से बात करिए, ध्यान में जाइए। अपने आप आपको पता लगने लगेगा कि क्या मैं कौन, और ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद क्या हो, एक दिन ऐसा आएगा हम उससे एकाकार हो जाएंगे और ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। जैसे परमात्मा ने हमको जन्म दिया बगैर कष्ट के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, हम शरीर को छोड़ के परमात्मा से मिल जाएंगे।
ये है पूजा का तरीका जो मैंने आपके सामने रखा, और इसे हर कोई अपना सकता है, चाहे किसी भी धर्म का अनुयायी हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अपने धर्म पे रखते हुए कर सके। ठीक है, बाहर जाके वहां पर भी यही होता है। पिछली बार हम अमेरिका गए, 1.25 महीना यही कार्यक्रम हुआ वहां पर भी। उसके बाद हम कनाडा गए, वहां पर भी यही कार्यक्रम हुआ। दुबई गए, वहां पर भी यही कार्यक्रम किया। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे डॉक्टर लोग इस चीज को मानते हैं कि हाँ ऐसा होता है। कैसे? राम हमने लिया तो क्या हुआ, हमने अपने दिमाग को ठोका राम, दोबारा फिर राम का तो फिर ठोका राम। एक चीज को 100 साल ठोक रहे दिमाग के अंदर, तो क्या होता है, इंप्रेशन बन जाता है। अगर 100 साल तक किसी मिट्टी के बर्तन पर आप ठोकते चले जाएंगे तो इट विल क्रिएट ए इंप्रेशन, बनता है नहीं? रेत है, आपने हाथ रखा, छोटा इंप्रेशन बना राम, दोबारा हाथ रखा और गहरा हुआ राम, फिर रखा फिर गहरा हुआ राम। तो क्या है, जिंदगी की सारी बातें हमको याद नहीं है, कोई कोई बात याद है जो गहरी चोट पहुंचाई हो जिसने मन के अंदर। हम राम राम करके मन को चोट पहुंचा रहे हैं, बार बार 24 घंटे चोट दे रहे, राम राम, सर पे इंप्रेशन डाल रहे, तो क्या होगा, ये राम ही राम रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा सर पे ऊपर। ये प्रैक्टिकल चीज मैंने आपको बताई कि ऐसे करने से ये होगा। और जब आपको प्रॉब्लम होगी तो ये राम काम आएगा और कोई चीज काम नहीं आएगी, सब चीजें ही रखती रह जाएगी। तो ये है तरीका पूजा का जो मैंने आपको बताया। इससे हर प्राणी, हर साधक, किसी भी भगवान को मानने वाला हो, अपने लक्ष्य को बड़े आराम से प्राप्त कर सकता है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।